Bismillahirrahmanirrahim. I was having some connection issues, but Alhamdulillah I'm connected. Last time, at the end of the lecture, we were talking about Darboux theorem, and uh, before that, we had discussed uh, some properties of increasing and decreasing functions, and some examples were done, and we proceed further. Uh, on the basis of properties of increasing and decreasing function, that in an interval, if the derivative is positive throughout, then function increases over the interval as you move from left to right, considering x values larger and larger. For increasing function, the images appear to be larger and larger. And if over an interval, सर आपने स्क्रीनशॉट really? अच्छा हो गई इस वक्त मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले केस में, ठीक है, okay. So if on an interval AB the derivative of a function is negative throughout, then as you go from left to right, considering larger and larger pre-images, we find on the right side, as you move, the images are smaller and smaller for decreasing function. Now, derivative sign, if at any point a function has a derivative value positive, then it is not only at that point, if the function will have a positive derivative in a small neighborhood of a point. Similarly, at a point, if the derivative is negative, it is not only that point where it is negative, but also there exists in a neighborhood where the derivative will have negative values. So it's not only a point where the derivative has a particular sign, but in the neighborhood of the point, it maintains that sign. Now, this Darboux theorem uses all these ideas, and what the theorem says is that a function, any function f, derivable on a closed interval. When we say that a function is derivable on a closed interval, that means interior points पे तो derivative exist करता है, means left hand derivative and right hand derivative same होंगे. But at the end points, left hand point पे right hand derivative exist करता है और right hand point पे left hand derivative exist करता है. इसके साथ ही हमने एक बता दिया कि जो derivative at left hand point है, जो कि right derivative है, और derivative at the right hand point जो कि left derivative है, इन दोनों के signs opposite हैं. Then, under these conditions, there will be at least one point, interior point C, where the derivative will have 0. I hope you remember that intermediate value theorem and related theorems. अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है ओवर इंटरवल AB और FA और FB जो हैं वो ऑपोजिट साइन के हैं, तो हमने प्रूफ किया था कि एट एन इंटीरियर पॉइंट the derivative, the function value must be 0. वहाँ सिर्फ फंक्शन वैल्यूज की बात हो रही थी. अगर कंटिन्यूटी है तो इफ एफ ए इज नेगेटिव एंड एफ बी इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ने कंटिन्यूसली ए एफ ए से बी तक जाना है, तो नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू जाने के लिए इट हैज टू क्रॉस एक्स एक्सिस. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कि एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव के साइंस ऑपोजिट हैं, तो डेरिवेटिव इंटीरियर पॉइंट पे कहीं ना कहीं 0 होगा. मैं उस थ्योरम को एज इट इज यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन डिराइवेबल तो दिया हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया. अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता तो मैं उसी रिजल्ट को इस्तेमाल कर लेता,
कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव एज अ फंक्शन नाउ. Derivative as a function is continuous over the interval a b. ये नहीं कहा गया. Derivative values at end points are of opposite signs. अगर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस दिया हुआ होता तो बीच में किसी न किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव ने जीरो होना है, क्योंकि डेरिवेटिव एक कंटिन्यूस फंक्शन है. बट द थ्योरम नेवर क्लेम्स दैट द डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस. derivable function है, function is derivable. So we cannot directly use that result here. Let me remind you that what result I am talking about. वो result था कि f is continuous on interval AB. FA and FB are of opposite sign. That means if I take the product of FA and FB, that product is to be negative. Then there exists a C between कुछ consistent problem आ रही है मेरे पास connectivity की. So I was talking about कि अगर function is continuous on closed interval, at end points the function values have opposite signs. That means the product of FA and FB is negative. Then there exists C in the interior such that f prime, f of C is 0. Situation is something like this. A graph of the function is something like this. At A, function value is negative. So A negative and B positive. तो क्योंकि फंक्शन ग्राफ कंटिन्यूस है तो इसने एक्स एक्सिस से गुजरना है. सो सी एफ सी इज 0. But when I am talking about f is derivable, on this interval, and f prime at A multiplied by f prime at B, they indicate negative, indicated that f prime A and f prime B have opposite signs. अब कहा जा रहा है कि there exists C between A and B where the derivative value will become 0. Now derivative as a function f prime x, उसके बारे में हमें ये नहीं कहा गया कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, ये नहीं पता. सो डार्बो थ्योरम जो है वो ये कह रही है. That means without derivative being continuous, we are claiming that if derivative satisfy this condition and function is derivable over the whole interval, तो फिर भी हमें एक point मिलेगा, interior point of the interval, where the derivative value will vanish. So let us see how this result is established or proved. सर अगर इन्होंने बोला हुआ है कि डिराइवेबल है पूरे उस इंटरवल के ऊपर, तो मतलब कंटिन्यूअस डिराइवेबिलिटी है. नहीं है ना. डिराइवेबल होना का मतलब ये कि हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. पॉइंट पे डेरिवेटिव तो मतलब बीच में कहीं कोई कास्ट टाइप चीज नहीं है. कुछ नहीं है. हाँ, यानी we don't have a graph where there is an edge, there is a sudden change in the यानी लेफ्ट साइड से जो है टेंजेंट्स डिफरेंट मिल रहे हो. ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो होगी जब डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो और सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो. हमें सिर्फ ये कहा गया, जैसे हम कह देंगे ये फंक्शन इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है. तो फिर वो जो अभी हम बात कर रहे थे व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ फंक्शन की कंटिन्यूटी का जिक्र किया गया है और उसकी बुनियाद पे ये रिजल्ट आया है.
लेकिन अगर हम सिर्फ कहते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, सिर्फ डिफाइंड होना जो है उसका मतलब ये है कि मैं लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होने की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ फंक्शन वैल्यू डिफाइंड है। तो भाई फंक्शन वैल्यू किसी इंटरवल पे डिफाइन होने का मतलब ये भी हो सकता है, ये इंटरवल है, यहाँ से गया फंक्शन यूं और फिर यहाँ से गया यूं, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये फंक्शन डिफाइंड है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा जी, जी दोनों ऊपर बना दिए थे, एक मैं नीचे बना दूं, इधर डूबे इधर निकले, तो इस इंटरवल पे अब फंक्शन जो है डिफाइन तो है एवरी पॉइंट, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। जब कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मुझे ऐसा पॉइंट मिले जिसमें फंक्शन वैल्यू 0 हो। तो अगर डार्बो थ्योरम कहती है कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो फिर यही रिजल्ट इस्तेमाल करके हम कहते हैं हाँ भी किसी न किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है। सो in this difficult circumstance, how this result is established, that is in fact learning real analysis. So in an effort that we find an interior point where the derivative has to be 0 under the given hypothesis, a loose hypothesis, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है और राइट हैंड पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। जो लेफ्ट हैंड पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव नेगेटिव लिया है तो फिर एक ए राइट साइड पर एक इंटरवल होगा जिसके हर पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब f8 पे जो फंक्शन वैल्यू है वो लार्जेस्ट है, बाकी सारी फंक्शन वैल्यूज ऑन x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल विल बी स्मॉलर। डेरिवेटिव नेगेटिव का कॉन्सिक्वेंस, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो fa लार्जेस्ट वैल्यू है, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसी तरह एफ प्राइम एच बी को जो हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव लेने का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एट राइट एंड पॉइंट। तो राइट एंड पॉइंट पे फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो लार्जेस्ट वैल्यू बी पे आएगी और बाकी सारी एक्स वैल्यूज पे फंक्शन वैल्यूज छोटी होंगी। विद दीज टू रिजल्ट्स लेट अस प्रोसीड फर्दर। अगर फंक्शन डिराइवेबल है ओवर इंटरवल a to b, a in not included, b included, this means function is continuous. Sorry, ये close interval ही है, derivability like it is given in the hypothesis, वो मैंने गलती से ही कर दिया था। So फंक्शन चूंकि डिराइवेबल है तो फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि if a function is derivable at in an interval then it must be continuous over the interval. Continuity of interval makes it sure that के function will attain its suprema and infima on the interval. हम कहते हैं स्मॉल m को इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन वैल्यूज फॉर द होल इंटरवल। इसका मतलब पूरे इंटरवल में जितनी इमेजेस हैं वो सब की सब m से बड़ी हैं। और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो कहता है कि फंक्शन विल अटेन इट्स एक्सट्रीमा, इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन्फिमम के बराबर होगी। इसका मतलब है एफ सी इज इक्वल टू एम एंड ऑल फंक्शन वैल्यूज अदर देन फंक्शन वैल्यू एट सी विल बी लार्जर। अब हमने देखना ये है कि क्या ये जो पॉइंट सी है जिस पर फंक्शन अपना इन्फिमम अटेन करेगा, ये पॉइंट सी जो है ये लेफ्ट हैंड पॉइंट या राइट हैंड पॉइंट हो सकता है? तो हम ये शो करने जा रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और कैसे करते हैं? In this line we have claimed that neither c is equal to a nor c is equal to b. इसका मतलब है जहां पर फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इन्फिमम है, वो पॉइंट ना लेफ्ट हैंड पॉइंट ना राइट, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। Now from 1 we have seen that fx is less than fa for every x belonging to the right side part of the neighborhood of a.
तो अगर मैं अज्यूम करूं कि a इज इक्वल टू सी है, तो दैट मेक्स व्हाट, fx इज लेस देन fc और fc इज मिनिमम इन्फिमम। तो इन्फिमम से छोटी तो वैल्यू हो ही नहीं सकती ओवर द इंटरवल। दैट मीन्स दिस इज कंट्रडिक्शन। ये कंट्रडिक्शन होने की वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमने लिया है a इज इक्वल टू सी पॉसिबल नहीं। इसी तरह सेकेंड वाला जो ये रिजल्ट था, इसमें हम हमारे पास एफ एक्स इज लेस देन एफ बी फॉर एवरी एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ द नेबरहुड ऑफ बी। अगर मैं बी को सी ले लूँ, तो ये लाइन मैंने गलत लिखी हुई है, मैं ज़रा इनोटेशन से इसको आपको सही करके दिखा दूँ। ये जो है जैसे पिछले स्टेप में था, और एफ बी हमने अज्यूम कर लिया इन्फिमम, तो ये स्मॉल एम। तो ये जो लेफ्ट हैंड पार्ट है पी का, अगर एफ बी को हम इन्फिमम ले लें, यानी सबसे छोटी वैल्यू राइट हैंड पॉइंट पे ले लें, तो इस पूरे इंटरवल में जितनी फंक्शन वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू 2 वो तो लेस हैं। तो ये भी कंट्रडिक्शन आ गई। दैट मेक्स इट कि भाई सी जो है ना लेफ्ट हैंड पॉइंट है ना राइट हैंड पॉइंट है, कोई इंटीरियर पॉइंट है। Now, at that interior point where the function attains its infimum, where every function value is greater than this. अच्छा साहब, अब fc जो है यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन डिराइवेबल है हर इंटीरियर पॉइंट पे, तो अब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब जो जिस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आई है, अब हम अज्यूम करते हैं कि एफ प्राइम सी, यानी वो पॉइंट जिस पे फंक्शन की वैल्यू स्मॉलेस्ट है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो वहां पे डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि in the neighborhood of C on the right side we have this situation. That means f is decreasing. Now what is this situation? अगर फंक्शन c पे नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन c पे नेगेटिव है, तो c से c प्लस सम डेल्टा, यानी राइट साइड पार्ट में एफ सी इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, फंक्शन इज डिक्रीजिंग नेगेटिव डेरिवेटिव की वजह से। जब फंक्शन डिक्रीजिंग है इंटरवल पे, तो अब सी पर इन्फिमम है और आगे बढ़ेंगे तो स्मॉलर वैल्यूज मिलेंगी, बिकॉज डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो क्या ये मुमकिन है? दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है यानी डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन की वैल्यूज इस इंटरवल में इन्फिमम से छोटी होंगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने लिया हुआ है कि ये इन्फिमम है, और ये हमने प्रूव किया हुआ है कि इन्फिमम ना ए पे है ना बी पे है, किसी इंटीरियर पॉइंट पे, और किसी इंटीरियर पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव हो तो इस इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग होगा, जिसकी वजह से ये इन्फिमम ही नहीं रहेगा। इसी तरह अगर मैं डेरिवेटिव को पॉजिटिव अज्यूम कर लूँ, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर यही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और जो मिनिमम या इन्फिमम है फंक्शन वैल्यूज का, उससे छोटी वैल्यूज इंटरवल में मिल जाएंगी। इसका मतलब है डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने की वजह से इंक्रीजिंग होने की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन, डेरिवेटिव नेगेटिव अज्यूम करने की वजह से डिक्रीजिंग फंक्शन, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन। चुनाचे ना डेरिवेटिव नेगेटिव हो सकता है एट इन्फिमम, एट अ पॉइंट वेयर द फंक्शन हैज एन इन्फिमम, ना वो पॉजिटिव हो सकता है। The only possibility is that the function has a derivative at a point where functions values attain their infimum, the derivative must be 0. Now, I hope this logic is
Clear to you? Just consider, let me consider some example, graphical example. A and B. अच्छा जी, यहाँ पे फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है। सो ये सिचुएशन इज देयर। फंक्शन डिराइवेबल होने की वजह से कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होने की वजह से बाउंड्स अटेन करेगा। ये यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, सम एक्स पे कैपिटल एक्स सुप्रीमम आएगा एंड सम एक्स पर इन्फीमम आएगा। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे कि इन्फीमम है, मैं डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव ले लूँ तो इसका मतलब ये कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, सॉरी नेगेटिव ले लूँ तो एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट की थी मैंने। और वैसे भी जो ज्योमेट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं इस वक्त दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इन्फीमम और मैक्स सुप्रीमम पर डेरिवेटिव को ज़ीरो होना चाहिए, जो आप स्कूल से करते चले आ रहे हैं, ओ लेवल ए लेवल से करते चले आ रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट हम उसको मिनिमम कंडीशंस में प्रूफ कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो कि इन्फीमम है फंक्शन का, अगर मैं डेरिवेटिव नेगेटिव ले लेता हूँ, एफ प्राइम एक्स डेरिवेटिव नेगेटिव ले लेता हूँ, इसका मतलब एफ इज डिक्रीजिंग। एफ डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि एफ एक्स जो है वो तो एम है, तो मैं किसी तरफ बढ़ूं तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव अस्यूम टू बी नेगेटिव। तो उसका मतलब है इसके अलावा तो इसको मुझे सी कहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू व्हाट वी एम डूइंग इन द प्रूफ। सो एफ प्राइम एट सी अगर नेगेटिव है तो एफ को सी के नेबरहुड में डिक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यूज जो हैं इन्फीमम से भी कम होनी चाहिए व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सम नेबरहुड ऑफ सी। मैंने एक साइड लिया था लेकिन आप दोनों साइड भी ले सकते हैं। सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एफ सी इज इन्फीमम। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं डेरिवेटिव को सी पर पॉजिटिव ले लूँ तो फंक्शन जो है कम्स आउट टू बी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि you will have what situation? You will have FC which is the infimum, और डिक्रीजिंग होने की वजह से इस नेबरहुड के एक हिस्से में ये कंट्रडिक्शन आ जाएगी, दूसरे हिस्से में दूसरी कंट्रडिक्शन आ जाएगी। डिक्रीजिंग होने की वजह से यानी एट सम पॉइंट फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है इस तरह से इस पॉइंट इन नेबरहुड में, अब जनाब आपको फिर फंक्शन वैल्यूज एक पार्ट ऑफ द नेबरहुड में एफ सी से कम मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट शोज दैट कि ना तो ये मुमकिन है ना ये मुमकिन है। सो जिस पॉइंट पे फंक्शन का इन्फीमम आ रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव जीरो होना ही चाहिए। This is an important result with minimum situations. We are talking about derivative being zero at infimum and derivative being zero at supremum. इसी तरह की एक स्टेटमेंट जो डार्बू थ्योरम हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने क्या किया था कि ये साबित किया था कि एक पॉइंट पर फंक्शन की डेरिवेटिव जीरो होगी। अब इस पॉइंट इस सेटअप में जो हमने अज्यूम किया था, वी टॉक्ड अबाउट इन्फीमम। अगर मैं दूसरा सेटअप ले लूं यानी लेफ्ट हैंड पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव और राइट हैंड पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव, तो फिर मैं प्रूफ कैसे करूंगा, जरा इस पर गौर कीजिएगा।
Intermediate value theorem for derivatives. If a function is derivable on a closed interval, at end point पे derivative values same नहीं है, तो फिर derivative values end point पे जो आ रही हैं, इनके बीच में कोई number ले लो. So inside the interval there will be a point where the derivative will attain this intermediate value of the derivative values. The proof is very simple. We assume or make a temporary function gx is equal to fx minus kx, where k is constant, and that we have assumed to be a value between f prime a and f prime b. Now, the value of g at the left-hand point gives you this. You take the derivative and then the value. G prime x is equal to f prime minus k. So g prime a is f prime a minus k. इसी तरह g at b is equal to fb minus k. Sorry, not the function, the derivative. G prime x is equal to f prime x minus k. So उस derivative में x की जगह b रखें, तो g prime b is equal to f prime b minus k. Now k lies between these two numbers. कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमने ये सोचा ही नहीं. इसका मतलब ये है कि ये नंबर अगर fa बड़ा है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और अगर fa छोटा है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. What I'm talking about? I'm talking about this कि एक लाइन पर वर्टिकल लाइन पे मैं कहूँ ये f प्राइम है, b है और ये f प्राइम a है और k इन बिटवीन कोई नंबर है. तो इस सेटअप के हिसाब से f प्राइम a माइनस k नेगेटिव है और f प्राइम b माइनस k पॉजिटिव है. अब अगर f प्राइम a की वैल्यू लार्जर f प्राइम b की वैल्यू स्मॉलर कंसीडर कर लूं तो अब ये रहेंगे ऑपोजिट साइन के ही, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. g prime a and g prime b are of opposite sign. That means g prime satisfies Darboux theorem. अभी जो हमने किया था, इसका मतलब है एक इंटीरियर पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां g प्राइम 0 होगा. चूंकि f derivable है, x derivable है, so g is derivable. G is derivable with on this interval with the property that end points पे g के derivatives की signs opposite हैं. इसका मतलब है g is satisfying the Darboux theorem and there will be a point c where derivative of g should be 0. और इसका derivative अगर मैं at c लिखूं, that means g prime c is equal to f prime c minus k is equal to 0, and that brings f prime c is equal to 0. So using Darboux theorem's hypothesis in conclusion, हम कहते हैं कि function अगर किसी interval पर derivable है, अभी भी function के derivative को continuous नहीं कहा हमने, derivable है. End points पे derivative same नहीं है, तो इनके बीच में कोई number जो है अगर consider कर लिया जाए, तो that number will be the value of the derivative at some point k. Again, this result is established without the continuity of the derivative. अगर derivative continuous होता तो कोई problem ही नहीं था. Rolle's theorem. This theorem you have studied in your earlier calculus courses और revision में भी मैंने कहीं इसका जिक्र किया है. Review of calculus में. This theorem says that your function is continuous over an interval, derivable over the same interval, but leaving out endpoints. And at endpoints, the function value is same.
then there should be an interior point in the interval where derivative value is 0. A geometrical understanding of this theorem is pretty simple. अब कहा जा रहा है कि हमारे पास एक इंटरवल है ए बी, एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन वैल्यू है यानी वाई वैल्यू सेम है. द सिंपलेस्ट ग्राफ विल बी व्हाट? वो यार वो कलर किधर गए? कलर नहीं है इसमें. क्या है? Simplest graph of a continuous function. Straight line. And everywhere the derivative is 0. Line. There is a possibility that graph starts rising here, and due to continuity and end value fb same, it has to come back. In that case, function being continuous and derivable, इसका मतलब है ना तो ग्राफ टूटा हुआ है ना कहीं सडन चेंज ऑफ डेरिवेटिव आ रहा है. So there will be some point where the derivative will be 0. If the function being continuous and derivable, sorry, I'm not able to control the pen very nicely. Continuity and derivability is there. Graph is not broken. Graph, there is no sudden change. So where do we get the derivative 0? थ्योरम कह रही है एटलीस्ट 1 पॉइंट. तो इस वाले ऑरेंज ये जो पिंक ग्राफ बन रहा है इसमें तो कई पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिस पे डेरिवेटिव 0 मिल रहा है. This is geometrical demonstration of Rolle's theorem, and we can have more complicated situations. Okay, if I consider this graph, what about this graph? Now, I have tried to make this point a cusp. That means if I come from left-hand side, there will be a different value of slope as we go close to this point. And from left side, the derivative value will be different. That means this function is continuous over this interval, but not derivable. एक point पे भी अगर derivable नहीं है, तो Rolle's theorem मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता. Sometimes you will find some point where the derivative is 0. Others, if the function is not derivable, you will find that there is no such point. Remember that absolute value function कल बात हो रही थी. This is absolute value function. Y is equal to x, y is equal to minus x. इस point पे function derivable नहीं है. अगर मैं y is equal to mod x consider करूँ और आपसे कहूँ कि interval -1 से लेके 1 तक, from -1 to 1, continuity is there, but derivability is not there. Function is not derivable. So Rolle's theorem conditions are not satisfied. Derivative is not 0 anywhere in this interval for the given function. With this geometrical interpretation, let us look at the proof of this. Function is continuous. इसका मतलब है मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ such that एक पॉइंट पे infimum आएगा, एक पॉइंट पे supremum आएगा, because continuity assures that the function will attain its least upper bound and greatest lower bound, or the supremum and the infimum. अच्छा जी, अगर ये supremum infimum सेम हो तब तो फंक्शन कांस्टेंट है and हर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है. So the requirement of the Rolle's theorem is available. Function is continuous, function is derivable. Constant function continuous होता है, derivable होता है, और हर पॉइंट पे एंड पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की सेम है और डेरिवेटिव 0 है हर पॉइंट पे. Suppose that the infimum and supremum are not same.
देन एट द एंड पॉइंट द फंक्शन वैल्यू इज द सेम, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि एंड पॉइंट्स पे इन्फिमम आ रहा है। द ग्रीन केस, द ग्रीन ग्राफ, एंड पॉइंट्स पे इन्फिमम आ रहा है। जब एंड पॉइंट पे इन्फिमम आ रहा है तो सुप्रीमम जो है वहीं नहीं आ सकता, वो किसी डिफरेंट पॉइंट पे आएगा जो ना ए पे होगा ना बी होगा, बल्कि कोई इंटीरियर पॉइंट होगा ना। इफ जिस पॉइंट पे सुप्रीमम आ रहा है उससे मैं थोड़ा पीछे हटूं सी माइनस डेल्टा, तो ये एफ सी माइनस डेल्टा मस्ट बी स्मॉलर देन दिस। स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर नंबर शुड बी नेगेटिव और एट मोस्ट जीरो। अगर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूं यानी माइनस डेल्टा से, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। एंड इफ आई टेक डेल्टा अप्रोचेज जीरो, यार ये मिस हो गया, यहाँ पे डेल्टा अप्रोचेज जीरो है, so that means the derivative or this limit will be positive or at least zero. इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी इज पॉजिटिव और जीरो। अच्छा जी, एफ सर सी, एक मिनट, हम हाँ अभी इन्फिमम की बात कर रहे हैं ना? देखो हमने पहला केस ये लिया था। हम इन्फिमम की तरफ आ रहे हैं ना, मतलब आप इन्फिमम के नहीं 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 लेफ्ट पे देख रहे हैं ना? नहीं, मैंने कहा कि एफ ए एंड पॉइंट पर इन्फिमम है तो किसी और पॉइंट पर सुप्रीमम होगा। जी, तो हम सुप्रीमम को देख रहे हैं, इन्फिमम को नहीं देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, वही मैंने कहा, वरना इन्फिमम को देख रहे हो तो फिर तो नहीं डेरिवेटिव इन्फिमम नहीं, नेगेटिव होता ना। ये चीज जब हमने ले ली, सो दैट शोज के जी, एफ एक्स इज लेस देन एफ सी फॉर ईच एक्स इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, हम्म तो जैसे ही मैं सी से, और जो मेरे पास अगर मैं फिगर बना दूं, ये ए है और ये बी है, एंड देयर इज सम इंटीरियर पॉइंट सी वेयर एफ सी इज द लार्जेस्ट वैल्यू सुप्रीमम। सी से जरा लेफ्ट पर हटूंगा तो फंक्शन वैल्यूज स्मॉलर होंगी, और स्मॉलर फंक्शन वैल्यू माइनस लार्जर फंक्शन वैल्यू विल बी नेगेटिव। दैट हम्म लीड्स टू द रिजल्ट दैट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी विल बी पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं एफ सी से थोड़ा राइट पे हटा, यानी सी से थोड़ा राइट पे गया, तब भी फंक्शन वैल्यू स्मॉलर होगी। स्मॉलर फंक्शन वैल्यू माइनस लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू इज नेगेटिव। इस दफा मैं पॉजिटिव डेल्टा से डिवाइड करता हूँ राइट डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो दिस विल रिमेन नेगेटिव। लिमिट अप्लाई करता हूँ तो आई रीच द कंक्लूजन कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी इज आइदर नेगेटिव और जीरो। So our results A and result B. Result A कहता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या जीरो होगा, रिजल्ट B कहता है राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। But the theorem says that the function is derivable at every interior point. So left hand derivative has to be same as the right hand derivative, and the only possibility is that they are equal to zero. Which proves the theorem. So the magic is that मैं सुप्रीमम पे काम कर रहा हूँ। सुप्रीमम जिस पॉइंट पे आ रहा है उससे ज़रा सा लेफ्ट पे जाता हूँ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाता हूँ तो वो पॉजिटिव या जीरो आता है। सुप्रीमम जिस पॉइंट पे आ रहा है उससे थोड़ा राइट पे जाता हूँ तो फंक्शन वैल्यूज वहाँ भी छोटी हैं, और उससे मैं राइट डेरिवेटिव बनाता हूँ तो वो नेगेटिव या जीरो आता है। क्योंकि फंक्शन डिराइवेबल गिवन है इन द थ्योरम, then left derivative and right derivative should be same. That is possible only when both of them are zero. So that is the Rolle's theorem. पता नहीं आप लोगों ने Rolle's theorem का proof पहले देखा है कि नहीं देखा? Oh, this in fact file is completed. I have to open the this is derivative 2 file, derivative 3 file मैंने अभी आप लोगों को WhatsApp पे शेयर की थी। So can you see this derivative 3 file now on your screen? Lagrange mean value theorem.
Are we connected? Yes, sir. जी सर. Lagrange मीन थ्योरम नजर आ रहा है. इसको हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं. हालांकि अगर आप देखा जाए, why the term mean value, intermediate value सिनोनिमस हैं. हम इंटरवल के बीच में किसी फिनोमेना की बात कर रहे हैं. तो रोल्स थ्योरम भी यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है. डार्बो थ्योरम भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है या मीन वैल्यू थ्योरम है. इससे पहले भी हमने रिजल्ट्स देखे हैं जिसमें हम अल्टीमेटली बात करते हैं, अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ हाइपोथेसिस वी क्लेम समथिंग अबाउट द फंक्शन, its derivative in an interior point. So due to that, these are mean value theorems or intermediate value theorems. मगर कुछ नाम मखसूस कर दिए गए हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए. इंटरमीडिएट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम फंक्शन की इंटरमीडिएट वैल्यूज की बात कर रहे हैं. यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम कहा गया है तो इसकी वजह ये है कि हम इंटीरियर पॉइंट पे किसी फिनोमेना की बात करें जैसे रोल्स थ्योरम में कर रहे हैं. So people can say that Rolle's theorem is the first mean value theorem, but conventionally we consider this. अच्छा जी, what are the differences between the hypothesis of Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem? Rolle's theorem में था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओवर क्लोज इंटरवल, डिराइवेबल है एट ओपन इंटरवल और फंक्शन की वैल्यूज एंड पॉइंट पे सेम है. यहाँ पे ये तीसरा पार्ट हाइपोथेसिस का ड्रॉप कर दिया गया. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिराइवेबल. Then there exists at least one point C such that the derivative is same as fb minus fa divided by b minus a. So before going to the proof, let me show you the geometrical aspect of the theorem. I have this point AFA. Function is continuous and derivable. मैं दूसरा point जो है वो ये ले लेता हूँ. The simplest continuous and derivable function can be the straight line joining the 2 points with slope what? fb minus fa divided by b minus a. अच्छा जी. What other cases are possible for the graph of the function? Graph starts increasing from here, goes higher and higher, but it has to come back. No. Oh, yes, it has to come back to fb because function has some value b. तो चाहे इंक्रीजिंग है तब भी उसको इस पॉइंट तक आना है, चाहे वो यहाँ से गुजर के ऐसे आ जाए, चाहे ऊपर जाके आए, चाहे बहुत सारी वेव्स बनाने के बाद यहाँ आए. Now, do we find a point where the tangent to the graph is parallel to this? So continuity and differentiability assures that यहाँ से tangent यूं बनेगा, फिर यूं बनेगा, फिर यूं बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, then it will become negative. So derivative positive से negative हो जाएगा कहीं. In between जो वैल्यू डेरिवेटिव की स्लोप की यहाँ पे है वही वैल्यू समवेयर यहाँ पे आएगा. अब मैंने कहा कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, मैक्सिमम पे जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. लेकिन हम यहाँ मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं सी की जहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज सेम एज स्लोप ऑफ दिस secant line. There can be other possibilities for graph, and it can be like this, in which case you will find a point here, 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 here again, so many points where the slope of the tangent is same as the slope of secant line, this joining points AFA and BFP. And with this geometrical introduction of the theorem, the proof is developed in a particular form
where we make a temporary function as we made a temporary function in the previous proof. The temporary function is a linear combination of the given function and the linear function y is equal to x, where a is a constant. So new function phi x, which is made from a linear combination of a continuous and derivable function, two continuous and derivable function. So this function has to be continuous and derivable over this. यहाँ जो a लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इस तरह से एडजस्ट की जा सकती है कि नया फंक्शन जो है उसकी वैल्यू एंड पॉइंट पे सेम हो. Mostly we write down where the unknown constant a may be chosen so that this. अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस स्टेप पर घूम जाते हैं कि भी ये क्या. I can make sure कि मैं तुम्हें ऐसा कांस्टेंट निकाल के दिखाऊं. But I leave this for your own exercise when I consider an example, how to make an example of a function over some interval given, जिसमें a और b की वैल्यू दी हुई होगी, और फिर आपसे कहा जाए कि एक फंक्शन बनाइए जो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम. Anyways, here this is our method of proof. हमने एक नया फंक्शन बनाया जिसमें एक अननोन कांस्टेंट है और हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू ऐसी चूज की जा सकती है जिसकी वजह से इस नया फंक्शन की वैल्यूज एट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल इज सेम. इसका मतलब है कंटिन्यूटी इज देयर, डिराइवेबिलिटी इज देयर, एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इज सेम. इसका मतलब phi satisfies Rolle's theorem. When phi satisfies Rolle's theorem, it is immediately give me an interior point of the interval where the derivative of phi should be 0. Now, the function defined with the property that end points of function की value same है, function continuous and differentiable है, and in the interior of the interval there is a point where the new function has derivative equal to 0. Rest of the steps of the proof are algebraic. 1 और 2 को इस्तेमाल करूं, यानी इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू a पे, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू b पे बराबर है इसकी वजह से, और इसको सिंप्लीफाई करके मैं माइनस a अलग करता हूं तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बचेगा. ये स्टेप तुम लोग खुद देख लेना. इसी तरह अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो 5 प्राइम इज इक्वल टू एफ प्राइम प्लस ए. उस डेरिवेटिव में x की जगह c रख दूं तो 5 प्राइम c बन जाएगा, और 5 प्राइम c इज 0. दैट मीन्स f प्राइम c प्लस a इज 0. दैट मीन्स माइनस a इज f प्राइम c. And these two results a and b tell me that at interior point the derivative or the slope of the tangent is same as the slope of the secant line joining starting and the end point of the graph. This Lagrange mean inverse theorem is of fundamental importance and is used to prove many other results that will come either during this semester or in your advanced real analysis course if you go to do an MS in mathematics. सर लग्रांज वाले में हमने a times x क्यों assume किया शुरू में? It's a typical way of proving mean value theorems that we make a temporary function which with the suitable choice of a satisfies Rolle's theorem condition, that is end point पे since function की values same हो. इसलिए नहीं सर, लेकिन y a times x ax square भी तो हो सकता था, इतना कुछ हो सकता था. ax क्यों खाली लिया है हमने? ताकि डेरिवेटिव लेते वक्त a गायब हो जाए, x गायब हो जाए. सर मतलब हम खुद ही थ्योरम बनाते हैं और फिर अपने हिसाब से चीज चूज करके उसे प्रूफ कर देते. ये तो गलत बात हुई ना. मतलब ऐसे हम कैसे? भी हम कहते हैं ना कि नए दीवानों को देखे से हंसी आती है. हम भी ऐसे ही थे जब आए थे ना खाने में. हम भी यही सोचते थे
अभी तो और भी ऐसे आज मुझे डिस्कस करनी है चीजें जिनमें उर्दू की जो पुरानी उर्दू की जो मुहावरे हैं ना, उसमें एक लफ्ज आता है अलल टप। हमें ये इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आर्बिट्रेरीली कर रहे हैं हमका। इट्स नॉट एक्जेक्टली आर्बिट्रेरीली। नहीं तो कोई थॉट प्रोसेस तो होगा इसके पीछे जो AX चूज किया है, मतलब ऐसे ही तो नहीं, डेफिनेटली मतलब सर प्रूफ करने के लिए तो नहीं चूज कर सकते ना, मतलब कि देखो क्योंकि इससे X गायब हो जाएगा और A रह जाएगा और F प्राइम C माइनस A बन जाएगा, लिहाजा AX ले लेते हैं, मतलब भाई ये देखो तो कोई बात। मैं नया फंक्शन ये भी बना सकता हूँ। So that GA is equal to GB for suitable A and B। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी यार अलग बटन दब गया फिर। यार जी, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ fx is equal to x square over the interval -1 to, sorry, not -1 to 1 to 2। ठीक है, इससे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ gx। Now see that in this case what will be f2 minus f1 divided by 2 minus 1, you can find out, that is not a question। हमारा क्वेश्चन ये कि ये जो है fx plus ax क्यों ले लिया। मैंने ये ऑल्टरनेट बताया कि मैं ये भी ले सकता हूँ। ठीक है जी, वो तो एक ही बात है। हाँ, तो अब देखें साहब एक्स स्क्वायर प्लस ax, और मैं कहूँ g1 is equal to g2। दैट मीन्स g1 का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 और 4 प्लस 2a। ओके, so a is equal to 3। that means gx is equal to x square plus 3x। a की वैल्यू 3 निकली, 3 निकली कि -3 निकली? -3। ये हाँ जी, -3 निकली। So it is -3। So gx बन गया क्या? x स्क्वायर माइनस 3x। अब देखो gx कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। व्हाट इज g1? 1 minus 3 minus 2। व्हाट इज g2? ये -2 4 1 minus 6 minus 2। तो g1 g2 बराबर आ गया। -6 जी। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक कि मुझे प्रूव करने के लिए जो चीज मैं इससे पहले प्रूव कर चुका हूं वो उसका इस्तेमाल मेरे लिए जायज है, हो जाए किसी तरह से। मैंने रोल्स थ्योरम में डार्बू थ्योरम इस्तेमाल किया, राइट? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, सॉरी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में डार्बू थ्योरम इस्तेमाल की। रोल्स थ्योरम में मैंने फंक्शन की अगर कंटिन्यूस है तो ये कि बाउंडेड होगा, और बाउंडेड ना से बाउंडेड होगा, बाउंड अटेन करेगा। तो जो मैं बिल्डअप करते जा रहा हूँ उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। So I have built up the Rolle's theorem। तो लैग्रांज मीन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं रोल्स थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फ्रॉम द फंक्शन इन क्वेश्चन जो कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करे।
अगर रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को इस्तेमाल करके मैं नए फंक्शन के बारे में कुछ बता सकूंगा. So that is ठीक the है logic. सर। That's the logic. So keep raising such questions. देखो ये चीजें जो हैं, this is the best time to be that you can ask. उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने शायद ना सोचा हो, लेकिन हो सकता है किसी को तुम्हारा ख्याल आया कि यार मैंने प्योर मैथमेटिक्स समझ में आने लगा है, मैंने प्योर मैथमेटिक्स में मास्टर्स करना है. तो वहां जाओगे तो ये थ्योरम तो वो आटे मटर आलू मटर की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे. अकॉर्डिंग टू फलानी थ्योरम ये रिजल्ट होता है. अब आप सोचें यार वो थ्योरम क्या कह रही थी, ये क्या आ रहा है. सो टू हैव अ लिंक बिटवीन दिस, और यहाँ लिंक डेवलप करना भी आपको बताया जा रहा है कैसे लिंक डेवलप होते हैं. ओके एक सर वैसे ये हम जितने थ्योरम पढ़ रहे हैं, लाग्रांज, रोल्स, डार्बो, ये सब ये असल जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं सिवाय पेपर पे? वो एक जमाना था जब मैं ऐसे सवाल जो है ना उनके जवाब में कहता हूँ भाई अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है ना तो जाओ जाके इंजीनियरिंग करो, बीबीए करो, कुछ और पढ़ो, ये क्यों पढ़ रहे हो. वो जो मैंने मैथमेटिशियन के लिए बारे में एक छोटे से 3-4 मिनट की मूवी बताई कि मैथमेटिशियन प्रोफेशनल जो है वो क्या करते हैं. वो लोग जिंदगी नहीं गुजार रहे होते हैं, वो सिर्फ इस मैथमेटिक्स के गेम से वी आर जस्ट हैविंग फन. मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स स्पेशली इज फन. हाँ अब तुम कहो कि जी जिंदगी, बात ये है कि जितना कुछ डेवलप होता है थ्योरेटिकली, फिजिक्स सारी की सारी मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है. मेरे सुपरवाइजर जिनके साथ मैंने एमफिल किया था, क्वांटम मैकेनिक्स में एमफिल किया था मैंने, तो वहाँ जब मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू किए तो अलजबरा और स्पेसेस भरे पड़े. सलाम साहब का पेपर था, सलाम एंड स्ट्रेटजी, 2 ऑथर थे. पार्टिकल फिजिक्स का पेपर था और पूरा पेपर जो है वो अलजबराज और स्पेसेस से भरा पड़ा था. अब जिसको फंक्शनल एनालिसिस नहीं आती वो नहीं समझ सकता, जिसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं आता वो पार्टिकल फिजिक्स नहीं समझ सकता. ये एग्जाम्पल काफी है. जी सर। मैं तो जिस दिन मुझे उन्होंने मैं जब प्रोफेसर खुर्शीद अख्तर सिद्दीकी, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ जिंदगी दे, जब उनके पास पहले दिन पहुंचा था उन्होंने मुझे किताब पढ़ाई थी क्वांटम फील्ड थियोरी की, ये जरा ये पढ़ो. उसके पहले पेज पर एक बड़ा सा फंक्शनल लिखा हुआ था. अब फंक्शनल एक खास किस्म की फंक्शन से आगे की चीज है. जब मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसे करके आया था 3rd ईयर के बाद मैंने प्योर पढ़ी नहीं. एनालिसिस के कोर्सेज किए थे, उसके बाद फंक्शन एनालिसिस नहीं पढ़ी. फाइनल ईयर में थी फंक्शन एनालिसिस. अब मैं तो चकरा गया, मैंने कहा ये क्या है, अब मैं ये कैसे समझूंगा. क्वांटम फील्ड थ्योरी जो इस वक्त छाई हुई है सारी फिजिक्स में, जो बिग बैंग और ये और वो जो कुछ हो रहा है और जितनी स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स हो रही है उसके पीछे भैया यही सब कुछ है. और आम आदमी वो जो टेलीस्कोप में से सैटर्न देखकर, जुपिटर देखकर खुश होता है, समझता है मैं एस्ट्रोनॉमी कर रहा हूँ. ना एस्ट्रोनॉमी कर रहा है ना एस्ट्रोफिजिक्स कर रहा है. अगर वो सही मायने में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स करने बैठ जाएगा ना तो उसको पहले प्योर मैथमेटिक्स सारी पढ़नी पड़ेगी. तो फॉर सर आपने बोला था आप हमें वो बताएंगे कि किस तरह हम रात को प्लैनेट्स देख सकते हैं स्काई में. आपने पहली क्लास के बाद आपने अपना वो भेजा ही नहीं. सर आप भेजे ना ग्रुप पे, हम भी देखेंगे. भाई मैंने असल में एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर एक लेक्चर बनाया है और उसके बाद वो सीरीज शुरू करनी है. लेकिन तुम लोगों ने अभी तुमने जो बात की वो ये थी कि ये कैसे पता चलेगा प्लेनेट है. आज हम जब दूसरी क्लास खत्म करेंगे ना तो नहीं बल्कि शुरू करेंगे उसी वक्त मैं तुमको बताऊंगा. तुम अपने घर पे हो जी. घर जो है वो तुम्हारा ऐसा है जहाँ छत के आसमान नजर आ छत हो और आसमान नजर आ सकता हो. जी जी जी. और तुम्हें ये भी पता है कि मशरिक मगरिब किस तरफ होते हैं. जी सर पता लगा लूंगी. जहाँ सूरज गुरूब हो रहा है रफली वो मगरिब है.
जी तो मैं अभी, अरे यार सेशन का टाइम तो हो गया ना आज इस वक्त का, अभी तुमको बता रहा हूँ कि मगरिब होने वाली है, तो तकरीबन 6:15 के करीब जब मैंने सेशन शुरू करना है, तो ज़रा वेस्टर्न स्काई में देखना, तो 2 स्टार्स नज़र आएंगे, देखने में स्टार्स होंगे, लेकिन उनमें जो राइट साइड पे ऑब्जेक्ट है वो जुपिटर है और जो लेफ्ट साइड पे है वो सैटर्न है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है और मैं कैसे बता रहा हूँ? तो भाई एक उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में। तो खैर, लेट मी एंड द सेशन नाउ एंड वील, थैंक यू। ये जो नोट है इस पे गौर कर लेना, और कॉशी-मीनर थ्योरम जो है मैं हिंट दूंगा, इसका प्रूफ तुम लोगों पर छोड़ दूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स पे आ जाऊंगा। विद दैट आई स्टॉप फर्स्ट द रिकॉर्डिंग and then say